Okay, question number one. Define word. Define the word. वो तो easy है. Okay. Energy per unit charge is your word. अच्छा, question number one part B. A battery of EMF 7 volt and negligible internal resistance is connected in series with three components as shown in figure. Resistor X has a resistance of 5.2 ohm resistance. The resistance of the filament wire of lamp Y is 6 ohm. The potential difference across resistor Z is 1.4 volt. Okay. Calculate the current in the circuit. So what do you think क्या करना है यहाँ पे? We need to find the current. Okay. So resistance मुझे इन दोनों का गिवन है. So voltage across these two resistors will be equal to 7 minus 1.4, which is equal to 5.6. This will be the voltage across these two resistors. Okay, so your current will be equal to I will be equal to V divided by R. V is 5.6 divided by R. R is 6 plus 5.2. इनको solve कर लो. So from this you will get current in ampere. The next question is determine the resistance of resistor Z. So इसका resistor हमने find करना है. So resistance आपके equal है I is equal R is equal to V by I. Voltage across this Z resistor कितना है 1.4 है. Current कितना हो जाएगा वो आप इस यहाँ से put कर लो. So you will get the resistance value. अच्छा, the next question is calculate the percentage efficiency with which the battery supply power to the lamp. Okay, so we need to find the efficiency. The efficiency is the output power divided by इनपुट पावर. तो इनपुट पावर आपका क्या हो जाएगा? इनपुट पावर इज यहाँ पे आपके लिए करंट फाइंड करना पड़ेगा. सो आपका करंट कितना है? सो योर इनपुट पावर दैट्स विल बी इक्वल टू आई वी. सो वो आई पुट कर लो और वी आपके पास 7 वोल्ट है. सो 7 आई हो जाएगा. आई आपके पास यहाँ से आ जाएगा. इससे क्या आता है 5.2 प्लस 6 5.6 0.5 आता है इससे. So that will be equal to I is equal to 0.5. So 7 times 0.5 that will be equal to 3.5. So this will be the input power watt. अच्छा, आउटपुट पावर आपके पास क्या होगा लैम्प का? तो लैम्प का आउटपुट पावर हो जाएगा स्क्वायर आर से फाइंड कर लो. तो आई आपका 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा और आर आपका 6 ओम आ जाएगा. सो दैट्स विल बी इक्वल टू 1.5. So your efficiency will be equal to output power 1.5 divided by 3.5 times 100. So that will be equal to 42.8%. So this will be your final answer. Okay, next question. Okay, next question is the filament wire of the lamp is made of metal of resistivity इतना ohm meter at its operating temperature in the circuit. Determine for the filament wire the value of alpha where alpha is equal to cross sectional area divided by length. Okay, resistivity मुझे गिवन है. वैसे हमारे पास जो फार्मूला था वो यही था कि R is equal to rho L by A. सो इन्होंने अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी है. से
सो आपका जो सॉरी अल्फ़ा नहीं, रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपको गिवन है, रो की वैल्यू आपको गिवन है, अल्फ़ा आपका ये हो जाएगा। तो आपका ये अल्फ़ा, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, सो योर रेजिस्टेंस विल बी टू रो, अल्फ़ा इज area per unit length, so that will be will come over here, area per unit length. So your alpha value will be equal to resistivity, which is equal to 3.7 times 10 की power 3.7 times 10 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपका वो गिवन है आपको सर्किट डायग्राम में, लैम्प का जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम आपको गिवन है, यहाँ पे देख लो 6 ओम आपको लैम्प का रेजिस्टेंस गिवन है। सो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, फ्रॉम हियर यू विल गेट द अल्फ़ा वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज स्टेट सेकंड लॉ। तो आपका जो सेकंड लॉ है दैट इज द वोल्टेज KVL है, सही है, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट लॉ आपका KCL का फर्स्ट किरचॉफ फर्स्ट लॉ, दैट इज द KCL, और किरचॉफ का सेकंड लॉ that is the KVL, which is the energy supplied is equal to the energy delivered. Okay. अच्छा, तो ये आपका दिस इज दी, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। और ये दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट लॉ आपका ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को, सेकंड लॉ ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। एक साइम से यूज में आते हैं। अच्छा, पार्ट बी, एन इलेक्ट्रिक हीटर कंटेनिंग टू हीटर्स हीटिंग वायर एक्स एंड वाई is connected to a power supply of electromotive force of 9 volt and negligible internal resistance as shown in figure 6.1. Wire X has a resistance of 2.4 ohm and wire Y has a resistance of 1.2 ohm. A voltmeter is connected in parallel with the wires. A variable resistor is used to adjust the power dissipated in wire X and wire Y. Okay, this is the variable resistor. The variable resistor is adjusted so that the voltmeter reads 6 volt. Okay, so the question is calculate the resistance of the variable resistor. Okay, so यहाँ पे voltage कितना आ रहा है, 6 volt आ रहे हैं। Now we will need to find the resistance of this variable resistor. अच्छा, तो ओके, यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर, व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस these two resistor is 6 volt, then the voltage across this resistor will be equal to 3 volt. वो किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर लो, सो फ्रॉम दैट यू विल गेट 3 वोल्ट। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। सो योर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V इज 3, आई वैल्यू, तो आई वैल्यू मुझे फाइंड करना पड़ेगा। सो आई वैल्यू आपके पास आ जाएगा, यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो इनका आपने these two resistors are connected in parallel, और तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करना पड़ेगा। सो पैरेलल में जब रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 2.4 टाइम्स 1.2 डिवाइड बाई 2.4 प्लस 1.2 से आ जाएगा। सो योर आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 2.4 टाइम्स 1.2, 2.88 3.6।
सो 0.8 आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब आपके पास वोल्टेज ये है तो करंट क्या हो जाएगा, तो करंट आपका यहाँ पे करंट कितना होगा, करंट आपका 6 डिवाइड बाई 0.8 7.5 एम्पियर आ जाएगा। दिस विल बी द करंट 7.5 एम्पियर। तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 7.5, तो 3 डिवाइड बाई 7.5 that will be equal to 0.4 ohm. This will be the resistance, okay, variable, this variable resistance. Okay, next part is calculate the power dissipated in wire X. वायर X में हमारे पास पावर कितना डिसिपेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमने पावर का फार्मूला अप्लाई करना है बेस ऑन गिवन डेटा। तो वायर X के आपका रेजिस्टेंस गिवन है आपको, और करंट हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो करंट मुझे ये वाला अभी जो मैंने फाइंड किया वो मैंने ये टोटल करंट फाइंड किया था 7.5 एम्पियर। यहाँ पे मुझे वोल्टेज गिवन है अक्रॉस दिस, तो मैं ये फार्मूला अप्लाई करता हूँ कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। सो 6 टाइम्स 6 हो जाएगा डिवाइड बाई आर, दैट इज 2.4। सो आपका पावर आ जाएगा 15 वाट, आपका पावर आ जाएगा। Okay, next part is the cross sectional area of wire X is 3 times the cross sectional area of Y. तो area of X will be equal to 3 times the area of Y. Assume that the resistivity and the number density of free electron for the metal of both wire are the same. Resistivity भी same है, it means कि material आपका same है, एंड नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कि आपका डायमीटर वगैरह वो सेम है, सही है। तो हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ एक्स वायर एक्स और लेंथ ऑफ वायर फाइंड करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। सो हमने क्या करना है, आर आपका आर एक्स हो जाएगा ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। सो आर एक्स मुझे गिवन है, आर एक्स इज इक्वल टू आर एक्स मुझे 2.4 ओम गिवन है। और ए एक्स आपका कितना हो जाएगा, 3AY हो जाएगा डिवाइड बाय एल एक्स हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू आर वाई इज 1.2 ओम। ए वाई अपनी जगह पे आ जाएगा और एल वाई हो जाएगा। सो यहाँ पे देख लो, सो दिस ए वाई विल कैंसल आउट बाय दिस ए वाई। सो आपका ये इससे आ जाएगा 7.2 आ जाएगा, दैट्स इक्वल टू डिवाइड बाय 1.2, दैट्स इक्वल टू एल एक्स डिवाइड बाय एल वाई। सो इससे आ जाएगा इससे 6 आ जाएगा। सो एल एक्स डिवाइड बाई एल वाई विल बी इक्वल टू 6। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा है कि द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन वायर एक्स, द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन वायर वाई। सो हमारे पास एक फार्मूला था, आई इज इक्वल टू एन क्यू वी डी ए, दिस इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, करंट इन एक्स हमने फाइंड करना है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने कहा कि दोनों में सेम है।
तो ये तो दोनों में सेम होगा, तो इसको मैंने अलग अल्फ़ाबेट नहीं देना। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, दिस विल बी डिफरेंट, तो इसको मैं डी एक्स लेता हूँ, और यहाँ पे एरिया ए एक्स हो जाएगा। इसी तरह आपका आई वाई क्या हो जाएगा, इसको एन क्यू वी डी वाई इंटू ए वाई हो जाएगा। सो आपका ये आ जाएगा रिलेशन बिटवीन आई एक्स एंड आई वाई क्या बन जाएगा, योर आई एक्स डिवाइड बाय वी डी एक्स ए एक्स will be equal to IY divided by VDY into AY हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास AX जो है वो 3 टाइम्स AY है, तो यहाँ पे 3 पुट कर दो। अच्छा, IX और IY मेरे पास अननोन है, इसको मुझे फाइंड करना पड़ेगा। सो आपका आई एक्स क्या हो जाएगा, आपका आई एक्स हो जाएगा करंट इन दिस, आई एक्स विल बी टू, यहाँ पे 6 वोल्ट है, सो दैट्स विल बी टू 2.6 डिवाइड बाय 2.4, दैट्स इक्वल टू आई एक्स करंट, एंड 6 डिवाइड बाय 1.2 दैट्स इक्वल टू आई वाई करंट। तो आई एक्स करंट आपका आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2.4 इंटू 3 इंटू वी डी एक्स, दैट्स इक्वल टू आई वाई आपका 6 डिवाइड बाई 1.2 इंटू वी डी वाई हो जाएगा। तो आपका वी डी एक्स डिवाइड बाई वी डी वाई दैट्स विल बी इक्वल टू, ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो ये आपका आ जाएगा 1.2 डिवाइड बाई 2.4 टाइम्स 3, सो ये आपका रेशो बन जाएगा। सो 1/6 आपका आ जाएगा इससे। ओके, next part, that's equal to, next part is question number 3. अच्छा, state Kirchhoff first law, तो Kirchhoff first law is the Kirchhoff current law, KCL है, okay। current enter into the junction, the sum of current into the junction is equal to sum of current out of the junction, सही है, तो that is the Kirchhoff first law। अच्छा, next question is a potentiometer which we are already discussed in last class is connected to a battery of EMF इतना 9.6 volt and a negligible internal resistance as shown in figure 7.1. The maximum resistance of the potentiometer is 800 ohm. A resistor R of resistance 400 ohm is connected between the slider and end X of the potentiometer. State the potential difference across resistor R when the slider is positioned at end X of the potentiometer। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इस स्लाइडर को यहाँ पे ले आऊँ at end X, तो ये आपका कुछ इस तरह का कनेक्शन बन जाएगा। तो फिर मुझे फाइंड करना है X पे जी, ठीक है। तो फिर आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होना चाहिए सर। कम होना चाहिए, क्यों? अच्छा, current will always follow the least resistive path, okay। If you have a circuit like this is the potential, okay। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, ओके। यहाँ पे आपका 1 ओम रेजिस्टेंस है, दिस इज 2 ओम रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आपका एक इस तरह का कनेक्शन भी है। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, सही है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट का,
दिस इज शॉर्ट सर्किट, सो इट मीन्स कि यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस जो है वो 0 है। सो इसका शॉर्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट, दैट्स विल बी इक्वल टू 3 और 1। एक्चुअली द करंट विल ऑलवेज फॉलो द लीस्ट रेस्ट ऑफ पाथ। तो क्या होगा, यहाँ पे करंट इस तरह आएगा, ओके इस तरह आएगा, और इंस्टेड ऑफ गोइंग इट टू ऑन दिस वे इट विल मूव लाइक दिस। ओके, टोटल पूरा करंट आपका इसी पाथ में फॉलो होगा और यहाँ पे आएगा, क्योंकि करंट को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अगर 1 ओम का भी होगा तो करंट इस पाथ को फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 है। सो करंट विल ऑलवेज फॉलो द लीस्ट रेस्ट ऑफ पाथ। तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, इसमें इस तरह जाएगा और ये आपका करंट इस तरह वापस आएगा सर्किट की तरफ। तो यहाँ पे आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट्स विल बी इक्वल टू 1 ओम। ओके, दैट्स विल नॉट बी इक्वल टू 3 ओम, दैट्स विल बी इक्वल टू 1 ओम। अच्छा, अगर यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी हो, लेट से यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू 0.01, तो फिर आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 के इक्वल नहीं होगा। फिर आपने क्या करना है, इस इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उनको फिर आपने इस रेजिस्टर के साथ ऐड करना है, यू विल गेट द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, अगर थोड़ा बहुत कम भी हो तो फिर आपने यही पैरेलल ऑपरेशन यूज़ करना है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे आपका करंट इस तरह आएगा, ओके इस पाथ से इस तरह होके आएगा। तो आपका जो यहाँ पे 2 पाथ मिल जाते हैं, जब ये यहाँ पे होगा तो एक आपको 4 ओम रेजिस्टेंस है एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट लीस्ट रेस्ट ऑफ पाथ। So current will follow this least rest of path and will move like this. ओके, तो करंट यहाँ पे नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, रेजिस्टेंस आपके यहाँ पे 0 हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 0 हो गया। सो इट मीन्स के V इज इक्वल टू आई आर, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी आपका 0 हो गया यहाँ पे। सो दैट्स वाई 0 विल कम ओवर हियर। अच्छा, एट इन वाई ऑफ द पोटेंशियोमीटर, अगर इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मैं इस तरह एंड वाई पे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, यहाँ पे एट वाई एन, तो यहाँ पे मोस्ट रेजिस्टेंस होगी हमारी। यस, अब यहाँ पे हमारे पास 2 रेजिस्टेंस आ जाएंगे इन पैरेलल। यस सर, 400 ओम। यस, 400 ओम एंड 800 ओम आ जाएगा। तो इसका क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, 400 ओम होगा या क्या होगा? सर आप इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं? यस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड पैरेलल करने में के जी सर फॉर्मूला लगाएंगे 1/r इक्वल्स 1/r1 1/r2। पैरेलल के लिए आप वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली जो पैरेलल ऑपरेशन के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि इजी भी होता है और इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता, तो आप ये फार्मूला नोट कर लो, इसको अप्लाई कर लिया करो। लेट्स से दिस इज योर रेजिस्टेंस R1, कौन सा वाला सर? this is your resistance R2 and both resistors are connected in parallel, so your equivalent resistance क्या हो जाएगा, that will be equal to the multiplication of these two resistors R1 R2 divided by the summation of these two resistors R1 plus R2 हो जाएगा। okay, this will be the equivalent resistance value। okay, so यहाँ पे आपका सो दिस विल बी इक्वल टू, ये फार्मूला आप अप्लाई कर लिया करो, सो आपके पास काफ़ी हो जाएगा। एज़ कम्पेयर टू मूविंग लाइक दिस वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे आपका एक रेसा ये, दूसरा ये है, तो ये बस आप सिंपल कर लो, 400 टाइम्स 800 डिवाइड बाय 1200 हो जाएगा। सही,
इसको कर लो 800 डिवाइड बाई 3, तो इससे आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। सही। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने फाइंड करना है यहाँ पे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आपके पास इससे आ जाएगा एंड वाई से। यस तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा फिर? ये तो 9.6 है। सही है। तो क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? पोटेंशियल डिफरेंस मींस के वोल्टेज क्या हो जाएगा अक्रॉस दिस रेजिस्टर? वो तो काफ़ी इजी था। सर, करंट तो गिवन नहीं है इसमें, यस, करंट गिवन नहीं है। तो V इक्वल्स आई आर तो नहीं लग सकता सर। और हमने वोल्टेज को फाइंड करना है अक्रॉस दीज टू रेजिस्टर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। काफ़ी इजी है एक्चुअली। आपका क्या स्लाइडिंग सर? काफ़ी इजी है एक्चुअली। आपका स्लाइडिंग कंटेक्ट यहाँ पे आ गया है इस पॉइंट पे। सो वी नीड टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स एंड दैट्स विल बी इक्वल टू actually 9.6 volt will be the voltage across these two resistor। ओके, यहाँ पे देख लो तो 9.6 का एक टर्मिनल यहाँ पे आएगा, इसका ये टर्मिनल यहाँ पे आएगा। सो द आंसर विल बी 9.6। इस तरह के अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, स्टूडेंट लगे रहते हैं राइट। उसको सॉल्व करते हैं और आंसर उनके सामने ही होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इज कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस across resistor R when the sliding is positioned halfway between x and y। halfway between x and y it means के जो अभी आपका स्लाइडिंग करंट है, इट मीन्स के यहाँ पे आपके पास 400 हो जाएगा इस साइड पे, और इस साइड पे भी आपका 400 आ जाएगा, तो टोटल आपका 800 आ जाएगा। सो नाउ 400 एंड दिस 400 इज कनेक्टेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो ये क्या हो जाएगा, इस इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 200। ओके, जब भी सेम रेजिस्टर आ जाए पैरेलल में तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो हाफ ऑफ दी वन रेजिस्टर हो जाएगा। सो दैट इज़ 200 ओम आ जाएगा इससे। अब हमने क्या करना है, अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है इसके अक्रॉस। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था वोल्टेज डिवाइडर रूल का। तो अब मेरे पास ये सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये सर्किट आपका इस तरह आ जाएगा कि क्या करना था? वो हमने एक वोल्टेज डिवाइडर रूल पढ़ा था, जी जी सर। वो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे अप्लाई होगा कि नहीं? ये सर्किट अब कुछ इस तरह बन गया। नाउ वी नीड टू फाइंड दी this potential, we need to find this potential। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल हमें क्या बताता है कि वोल्टेज अक्रॉस दिस पोटेंशियल विल बी इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज विच इज 9.6 टाइम्स द रेजिस्टर। ये आपका 400 डिवाइड बाय सम ऑफ द टोटल रेजिस्टर, तो 400 400 800 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 4.8। यस, तो आपका 4.8 ये आ जाएगा। ओके सर। अच्छा, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा था, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो मेरे पास 200 आ रहा था। एक्चुअली यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो 200 है, इन दोनों रेड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 200 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय 600 हो जाएगा। So these two is 0 will cancel, these 2 0 2 और 3 is 6, तो 3.2 आ जाएगा।
ओके। रिपीट करेंगे एक दफा? एक्चुअली यहाँ पे मैंने पहले रेजिस्टेंस को 400 ओम दिया था। वोल्टेज डिवाइडर रूल में हमारे यस सर। पास ये दो रजिस्टर पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने फाइंड करना है और उसी के अक्रॉस आपने वोल्टेज को फाइंड करना है। ओके, तो राइट सर। अब आपके पास आ गया 200 ओम आ गया। यस सर। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका 600 ओम हो गया। ओके, तो ऊपर भी 200 लिख लो, नीचे 600 लिख लो। 200 टाइम 9.6 डिवाइड बाई 600, सो इससे आपके पास वोल्टेज आ जाएगा। 9.6 किया सर आपने या 800 किया? 9.6 इंटू 200 किया मैंने, वो मैंने कटिंग कर लिया था, ठीक तो है। फिर आप हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, दिस इज 6। ओके, ये आपका 6 है। ठीक है सर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज। और ये कब होगा सर? जी, ये हम इसको 200 कब लेंगे? एक्चुअली यहाँ पे आपका ये इस तरह था कि 200 ओम आपका इसका इक्विवेलेंट आ रहा था। पहले आपका ये जी सर, रेजिस्टर, इक्विवेलेंट क्यों लिया आप? इक्विवेलेंट मैंने इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका, यहाँ पे आपका करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है। इसमें भी करंट जा रहा है, इसमें Yes, भी sir. करंट जा रहा है, फिर इसमें आपका करंट डिफरेंट जा रहा है। जबकि हम वोल्टेज डिवाइडर रूल जब भी आपने यूज़ करना है तो आपने वही रेजिस्टेंस, उन्हीं रेजिस्टेंस को इनकाउंटर करना है जिसमें सेम करंट फ्लो हो, डिफरेंट करंट फ्लो ना हो। राइट सर। तो यहाँ पे आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, तो मैं इस तरह कर इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर लेता हूँ। तो यह सर्किट मेरे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये आपका 200 आ जाएगा, बिकॉज द इक्विवेलेंट ऑफ दिस टू रजिस्टर इज 200 ओम। ये आपका 400 ओम आ जाएगा। या तो आप इस तरह कर लो कि अगर आपके पास लैब में 400 ओम के रेजिस्टेंस अवेलेबल है तो आप ये 400 यहाँ पे दोनों कनेक्ट कर लो। अगर आपके पास 200 ओम रेजिस्टर अवेलेबल है, 400 ओम आपके पास नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग दीज टू 4 ओम रेजिस्टर यू विल कनेक्ट ओनली 1 ओम रेजिस्टर इन सीरीज विद दिस रेजिस्टर। तो ये अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। हम अक्सर सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन को जब लैब में यूज़ करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रजिस्टर अवेलेबल है। वो कलर कोड के थ्रू हम रजिस्टर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फिर कुछ रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं, कुछ को पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। तो वैल्यू को फिर वो उसके अपनी जो लैब में रजिस्टर की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली वो लाते हैं फिर उसको। सो ये सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन का यही फ़ायदा होता है। राइट सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आप ट्राई कर लो। तो अगर आपने कर लिया है अप टू 10 क्वेश्चन तक कर लो एटलीस्ट, ताकि जितने भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। तो Yes, sir. अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो कल पे डिस्कस करने Okay, की चाहिए। कोशिश कर लो कि 10 तक कर लो। ठीक है सही? सर, इंशाल्लाह। या 10 तक अभी कर लिया करो। जी सर, इंशाल्लाह मैं सारे चैप्टर्स में 10 न्यूमेरिकल्स कर लिया करो, फिर जब एग्ज़ाम आ जाए तो फिर वो बाकी नेक्स्ट 20 कर लिया करो। तो टोटल 20 न्यूमेरिकल्स इज़ इनफ Right. फॉर 1 चैप्टर। ओके।